So the big day is for Indian archery actually. I mean, Deepika Kumari, Ankita and Bhajan, Taruddeep, Praveen and Dheeraj, all of them are training. And as you can see, I mean, beautiful weather here in Paris. They are training around now. We are doing this, we are shooting this when it's around, midday, late, early afternoon in India. And you will be watching it around evening. So let me give you the update about Deepika, Ankita and Bhajan. They are going to train, they are training this morning here in Paris. Their opening round, their ranking round is on the 25th at about 9:30 local time. That is when they will first start competition. And this is a very important ranking round because why? The cumulative scores or the collective scores of the three archers will then come together to decide who India plays in the competition. So that's the kind of update you will get from after the ranking round. So Deepika, huge tournament. Coming back after motherhood, if somebody told her that 1 year back Deepika will be playing the Olympic Games, nobody would believe it. 16 days after becoming mother, she went into the first trial. Can you believe it? She could not even stand. She was not in the... When I met Deepika in November, she was 25 kilos heavier. From there to do what she has done is absolutely spectacular. Spectacular. So that's the kind of effort that she has put in. And this is where we are. This is the Bercy area in Paris. This is our hotel. On the other side is our hotel. This is where we are staying. But coming back to the archers, morning 25th will be Deepika, Ankita and Bhajan, and afternoon will be Tarundeep Rai, Praveen and Dheeraj. So that's the kind of update. We had spoken to Deepika at length, coming back after motherhood. What does it mean to leave her child and come here? It will be a massive competition for her. So let's all cheer for Deepika, The effort, the resilience, the commitment, the passion, the determination, all of that counts. Here's the throw to the interview that we had done with Deepika as we start cheering for her starting the 25th. Keep watching. Here joining me a very close friend of mine. I mean, I've celebrated Deepika Kumari for how many years? I don't know. I mean, she doesn't look that old. Even I'm not that old. But 12, 13 years because she's a prodigy, absolute prodigy. Trust me. But now we are celebrating something different. आफ्टर मदरहुड दोबारा वापस आने का ये जो तजुर्बा उन्होंने दिखाया है, आके ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन, शंघाई में वो गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप का मेडल, मल्टीपल मेडल्स, ये हमने सोचा भी नहीं था। आई मीन, उनका दोस्त होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, मेरे लिए भी जब वो और ओतनू मेरे से कहते थे कि हाँ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन ही अल्टीमेट गोल है, मैं तो सोचता था कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, शायद नहीं होगा। हो गया, करके दिखा दिया आपने। आई मीन, एंड लुक एट यू, वेल डन, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप बिलीव करते थे एक्चुअली? ऑनेस्टली जब मैं वापस आई थी तब मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था, बिकॉज 1-1.5 साल गैप करने के बाद क्या एक एथलीट्स खुद भी बोलता है कि कैसे होगा। बट धीरे धीरे जैसे मैं ग्राउंड पे उतरी, खुद में इम्प्रूवमेंट देखा मैंने, तो मैंने खुद से ही बात करती थी है अभी भी कर सकती है, जान बची है तुम्हें। सो ऐसे ही करते करते फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ, एंड देन फिर वर्ल्ड कप में ट्रायल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, एंड देन फिर कंटिन्यू 3 ट्रायल में एंड वर्ल्ड कप। सो यस, भरोसा था। एंड देखिए, अभी जो टीम भी क्वालिफाई हो चुका है। आई मीन, ये हमारे रिकप में हम लोगों ने बहुत क्लोज आए हैं। अगर मैं रियो देखूँ, आप रशिया के साथ वो मैच क्वार्टर फाइनल, आपका हर मैच मैं ग्राउंड से कवर किया है, टोक्यो भी। वी हैव अ रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी। उस दिन क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, बट टीम तो अच्छा है। ऑफ कोर्स टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट, और शायद इसलिए हम लोग क्वालिफाई किए क्योंकि कंटिन्यू हमने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड हम बहुत बार ऐसे हुआ कि हम पहुंच के चूक गए हैं, बट टीम बहुत अच्छी। हम इस बार बहुत मेहनत किए हैं, अलग तरीके से मेहनत की, अलग तरीके से सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की है, और हम तीनों भी आपस में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और जैसे कि मैं बहुत कुछ है जो टीम को मैं बोलते रहती हूँ कि ये मत करना, वो मत करना। सो वो सब चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा, फिलहाल बहुत अच्छा। ये जो बात आपने अभी कही कि ओलंपिक्स आपने मल्टीपल टाइम्स आप ओलंपिक्स खेल चुके हो, ये एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो प्रेशर वाला स्टेज आ जाता है। और जो यंग एथलीट्स हैं वो ओलंपिक गेम्स, आप तो वहाँ जा चुके हो, जानते हो, योर एक्सपीरियंस? मैं तो सोच रही हूँ मैं पहली बार ओलंपिक खेलने जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स विथ एक्सपीरियंस हमेशा इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन जैसे कि आपने बोला उस टाइम पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप किस माइंडसेट से खेल रहे हो, कितना आपका बो साथ दे रहा है आपका, या आप अपने बो को कितना साथ दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस मोमेंट पे कितना कॉन्फिडेंटली शूट कर रहे हैं, क्योंकि हर अपोनेंट अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होता है। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस सिचुएशन को समझ के अपने आप को प्रेजेंट करना, पॉजिटिवली सोच के परफॉर्म करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे लास्ट जब मैंने बात किया था, आपने मेरे से कहा था कि बच्चे को छोड़कर जाना, आई मीन आपने ये भी कहा था कि जब व्हेन वो योर किड वाज अवेक, यू डिड नॉट गो बिकॉज द किड वुड स्टार्ट क्राइंग. Is this for the child? Is this comeback for the child? And what was the reaction of the parents? पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा से अभी, मेरे खुद के मम्मी पापा से अभी तक बात नहीं है, बट मेरे इन-लॉज बहुत खुश हैं, मेरा हस्बैंड बहुत खुश है। उनसे मेरा बात होता है। और अभी मैं ट्रैवल करके 1.5 महीना, अभी तक मैं अपनी बच्ची से नहीं मिली हूँ। बट आई रियली मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों ट्राई करते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं, हम हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, हम हमेशा अपने आप को चैलेंज देते रहें और उस पर खड़े होते रहें। सो वो हमारे लिए भी एक सीख होती है कि हम जितना हो सके सीख सके, और ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन भी सीखे, चाहे वो खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। आप मिस करोगे ओतोनु को वहाँ पे? और ये ओतोनु के लिए होगा ये मेडल? इंटायर मतलब ये जितना पूरा साल मैंने उसको बहुत मिस किया है, हर टूर्नामेंट में, हर कैंप में। तो क्योंकि मैं ये बोल दूँ, जब आप अंटालिया में शूट कर रहे थे तो मैं उनसे हर दिन बात करता था। सो एक दिन मैंने उनसे पूछा, यार, एंड ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनसे, यार तुम नहीं रहोगे? से दादा अभी ना आप मेरे बारे में मत पूछो, दीपिका के बारे में चलो दोनों बात करते हैं, वो जाएगी, वो जीतना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उससे मैं बहुत सीखती हूँ कि कैसे काम और पॉजिटिव रहना है। कभी कभी नेगेटिव बोलती है तो बहुत डांटता भी है मुझे, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उससे सीखने के लिए कि कैसे काम रहना है, क्योंकि आज भी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे खुद को काम रख सकते हो टफ से टफ मैच। 1 महीना भी बचा नहीं है, 3-4 हफ्ते बचे हैं। 28 एग्जैक्टली। प्रिपरेशन, ये जो टाइम थोड़ा सा अभी बचा है दीपिका, प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? बाहर आप पेरिस जाओगे कब? ये लास्ट का जो होम स्ट्रेच है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम यहाँ पे 10-15 दिन के लिए हैं, एग्जैक्ट डेट अभी कंफर्म। आप पुणे में ट्रेन करोगे? यस, हमारा कैंप पुणे में लग रहा है, और डेफिनेटली हम अभी इतने कम टाइम पे हम कुछ अलग नहीं करना चाहेंगे। जो हम कंटिन्यू ये पूरा इंटायर ईयर किए हैं, हम वही कर रहे हैं, बस उसी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिविजुअली खुद को कॉन्फिडेंस मेंटली, क्योंकि टेक्निकली हमारे अंदर कोर मेमोरी में होता ही है। सो हम जितना हो सकता है हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश। थैंक यू वेरी वेरी मच, लव यू, थैंक यू सो मच।